Hello students, how are you? I hope you are doing great. Today in 10th class, today we will discuss human digestive system. For biology chapter life processes, in that the first process is digestion or nutrition, you can say. In that we will discuss human physiology topic, that is human digestive system. First of all, see the diagram. In human digestive system, we just start from the mouth, buccal cavity, then food pipe, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. See, pancreas, liver, gallbladder. These are the associated organs. देखो ऐसा नहीं है कि लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर का कोई फंक्शन नहीं है. एक्चुअल में दीज आर नॉट द साइट फॉर डाइजेशन. कोई भी फूड डाइजेशन, जो भी हम फूड लेते हैं, आइदर इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कोई भी कंपोनेंट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर में. दीज आर नॉट द साइट ऑफ डाइजेशन, बट देयर secretions are help in digestion of the various components of the food. That's why we call these are associated organs. The major alimentary canal organs कौन कौन से हैं? Mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. So we start from the mouth. In mouth, in buccal cavity, when we intake food, the carbohydrate content of the food, because in buccal cavity there is a saliva, and saliva have salivary gland. In mouth actually there is a salivary gland. In salivary gland there is an enzyme called amylase. This amylase helps in digestion of the starch. So द कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है? इटसेल्फ इन द माउथ. जैसे ही वी इनटेक फूड, द कार्बोहाइड्रेट गेट स्टार्ट डाइजेस्टिंग इन माउथ बाय द एंजाइम अमाइलेज, जो सेलिवरी ग्लैंड रिलीज करता है. और अमाइलेज क्या करेगा? लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेगा इनटू स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है. देन the food from the mouth moves to the esophagus. This movement of the food by the esophagus from the mouth is known as peristaltic movement. See, this movement of the food from the mouth to esophagus is called peristalsis, or the movement is called peristaltic movement. जैसे ही जो food है वो ईसोफेगस के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में मूव करता है बाय कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. ईसोफेगस के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं. उस वजह से जो फूड है इट बेंड डाउन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट और प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टैल्सिस. आई होप यू मस्ट क्लियर कि व्हाट इज पेरिस्टैल्सिस. Then by the esophagus the food is in stomach. देखो stomach की secretions को generally हम बोलते हैं gastric juice. The secretions of the stomach are called gastric juice. Gastric juice में there are three components. One is pepsin, HCl, and third one is mucus. सी HCl क्या है? आपको पता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है. इट इज सिक्रीटेड इन आवर स्टमक बाय द स्टमक इटसेल्फ, इज कॉल्ड HCl. HCl की वजह से जो एसिडिक मीडियम है वो एसिडिक मीडियम इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को डैमेज ना करे, इसलिए म्यूकस इज देयर. म्यूकस क्या करता है? दिस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द highly strongest acid, that is HCl. This is the function of mucus. Mucus provide protection to inner lining of the stomach. Then we move to HCl. Why HCl is required or why pepsin is required? Pepsin is the enzyme जो help करेगा in protein digestion. जो भी फूड आपने इंटेक किया उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट स्टार्ट हुआ था कहाँ पे डाइजेस्ट होना? माउथ में. अब वो फूड आगे मूव किया तो उसमें कोई ना कोई प्रोटीन कंपोनेंट भी है ना, तो दैट प्रोटीन कंपोनेंट स्टार्ट ऑन डाइजेशन बाय द एंजाइम पेप्सिन इन स्टमक.
अब जो पेप्सिन है इट गेट एक्टिव ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. आई होप यू मस्ट क्लियर विद दिस. पेप्सिन तब तक इनएक्टिव रहता है जब तक उसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलता है. जैसे ही HCl सिक्रीट होगा इनटू द स्टमक, that HCl provide acidic medium and acidic medium is responsible for the activation of the pepsin. पेप्सिन तब एक्टिव होगा, मींस पेप्सिन तब प्रोटीन डाइजेशन करेगा जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा, और वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? HCl. I hope you must clear with the three components of the stomach or the gastric juice. Gastric juice, pepsin, HCl and mucus. Pepsin for protein digestion, HCl for acidic medium for activation of pepsin, and the third one is mucus. Mucus क्या करता है? Protection provide करता है from HCl to the inner lining of the stomach. Then from stomach the food will move to small intestine. See this part which is called duodenum. This is the uppermost part of the small intestine. देखो लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज. लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज तीनों केसेस में मींस तीनों ग्लैंड्स या तीनों की सेक्रीशन को कौन कनेक्ट करता है? ड्यूडेनम. ड्यूडेनम के पास तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट सी लीवर. लीवर क्या करेगा? लीवर सेक्रीट बाइल जूस. लीवर क्या सेक्रीट करता है? बाइल जूस. और बाइल जूस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट. इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या? इमल्सिफिकेशन मींस डाइजेशन और ब्रेक डाउन यू कैन से. ठीक है. लीवर में बाइल जूस है. बाइल जूस क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स. लार्जर वाले जो फैट हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बाय द लीवर. लीवर में कौन? बाइल जूस. And that bile juice is stored in gall bladder. Gall bladder में वो bile juice तब तक store रहता है जब तक small intestine में food reach नहीं करता है. मैंने पहले starting में बताया था कि liver, gall bladder और pancreas तीनों ऐसे components हैं digestive system के जो सिर्फ secretions provide करते हैं, but these are not the site for डाइजेशन. मतलब यहाँ पे ये नहीं मैं कह रही हूँ कि जो फूड है वो बाइल जूस में आ गया है, या जो फूड है वो लिवर में है, या जो फूड है वो गॉल ब्लैडर में है. नहीं, फूड तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लेकिन जो सिक्रीशन है वो कहाँ पे है? बाइल जूस. वो कहाँ पे है? गॉल ब्लैडर में. तो सी लीवर में सिक्रीट हुआ बाइल जूस स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में. दिस गॉल ब्लैडर सिक्रीशन is moving to the small intestine, that is upper part of small intestine, duodenum. duodenum के पास जब लीवर का वो secretion आता है मींस गॉल ब्लैडर जहां पे वो स्टोर करके रखता है बाइल जूस, तो वहां पे बाइल जूस कहां पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और स्मॉल इंटेस्टाइन में इट स्टार्ट इमल्सिफाइंग द फैट, मतलब फैट डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. सेम in pancreas. Pancreas is a leaf like structure और pancreas में कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन for protein digestion. देखो स्टमक में पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन नॉट कंप्लीटली. पूरे के पूरे प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते हैं. तो जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स हैं वो मूव करेंगे इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर मोस्ट पार्ट दैट इज ड्यूडेनम वो क्या लेता है? पैनक्रियाज का ट्रिप्सिन भी यहाँ पे रिसीव होता है. मींस पेप्सिन इन स्टमक फॉर प्रोटीन डाइजेशन, बट अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज का सेक्रीशन दैट इज ट्रिप्सिन. ऐसे ही फैट के लिए बाइल जूस का लीवर का सेक्रीशन बाइल जूस दैट गेट स्टोर्ड इनटू द गॉल ब्लैडर.
तो गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज के दोनों के सिक्रीशंस जो हैं वो कहाँ पे आएंगे, इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, और वहां पे फैट और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स जो हैं वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एब्जॉर्प्शन। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में कि वाई जो एब्जॉर्प्शन है वो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, बिकॉज इन स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। और विलाई का फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी फॉर एब्जॉर्प्शन। जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ उसमें से जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को एब्जॉर्ब करने थे, दैट एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देन जब सब कुछ एब्जॉर्ब हुआ, द फूड विद वाटर कंटेंट गेट मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में सब कुछ वाटर एंड ऑल सब रीएब्जॉर्ब होने के बाद द अनडाइजेस्टेड पार्ट या अनडाइजेस्टेड फूड जो भी बचा, इट गेट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी बाय द एनस। आई होप यू मस्ट क्लियर विद दिस टॉपिक कि कैसे कैसे जो फूड है वो ट्रांसफर हुआ फ्रॉम माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine and get excreted out from the body by anus। and liver, gallbladder and pancreas ये तीनों क्या है, accessory glands हैं जिनका secretion upper most part of small intestine duodenum receive करता है। I hope you must clear with this topic. Do visit previous videos for physics and heredity chapter. Do share, subscribe my channel. Thank you so much.